the most hated topic for entrepreneurs, but which is also most essential for any person, which is sales. So I welcome Ashish. So I had not thought about it, but it came me in that moment. I said, my name is Ashish. It comes in our national anthem. I want to be part of India growth story. Sales is a very rewarding career also. It's demanding for sure because you have to be always ready for rejection. Failures to both हैं. Every month you are at zero. My recent company Rapido, so I've been part of the founding team almost from day one. एंड आई हैव लर्न अ लॉट इन दिस कंपनी बिकॉज 8 साल जब आप कंपनी को 15 लोगों से 350 लोगों की कंपनी बनते हुए देखते हो, वी आर वन ऑफ द लाउड पार्टनर्स विद AWS टुडे, स्पेशली फ्रॉम आवर फाउंडर. सो ही ऑलवेज सेज दैट एज अ फाउंडर यू हैव टू बी अ सेलर. सेल्स के लिए यार सेल्स ना फील्ड में होती है. तो ऑफिस में बैठ के ज्ञान देना आसान है. जब आप फील्ड में जाते हो ना, गर्मी हो, दिल्ली में 45-50 डिग्री टेम्परेचर जाता है. उस गर्मी में भी सेल्स वाले को बाहर जाना है, बारिश हो रही है उसमें भी बाहर जाना है, जो मर्जी हो रहा है. जब तक बिका न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया. So, welcome to another chapter of Built on Brains. In this chapter, we have a sales professional who has 20 plus years of experience. He is also an engineer and he is also my college mate. We did engineering together and now he's working with Rapider, which is a cloud consulting company. So, it will be a fun podcast because in this podcast, we are going to discuss the most hated topic for entrepreneurs, but which is also most essential for any person, which is sales. So I welcome Ashish on this podcast, and it will be a lot of learning from you, how you landed up in a sales after being an engineer. So thank you for accepting my invitation and coming on this podcast. Thanks, Sunit. So, so guys, whoever is watching this podcast, my first suggestion is if you are in sales and you want to learn something on sales, do watch it. And second thing which you will get in this podcast is a lot of fun because we have been college mates and we'll be speaking a lot of old stories. So दो दोस्तों की कहानी सुनोगे तो अच्छा लगेगा. And this podcast will be Hindi, English. Sunit is a Maharashtrian, so मराठी भी होगी इसमें. तीनों लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो मज़ा आने वाला है. सुन के देखो यार, कहानी है, अच्छी है. 20 साल हो गए मेरे को सेल्स प्रोफेशन में. स्टार्ट ही सेल्स से किया था. तो जैसे सुनीत आप पूछ रहे थे कि यार, सो यू आस्क्ड मी हाउ डिड यू लैंड अप इन सेल्स. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हाउ इट बिगैन. सो आई कम फ्रॉम वॉलचंद कॉलेज, रादर बोथ ऑफ अस कम फ्रॉम वॉलचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वेरी reputed college known for the mechanical, civil and electrical engineering in those days, but then computer science and all other branches also came in. So we went for campus interview. I went for a shop floor engineer interview, and while the interview was on, there was a panel of 3-4 people. One of the guys asked me, "Why do you want to join sales?" And it clicked me. Why is he asking me that question? I said, "Why are you asking me that question? I'm for a tech role. I'm a mechanical engineer." He said, "No, Ashish, I think you can do sales." And I took a 30-second pause, and I said, "Yes, I would like to join." And they offered me. Okay. And then when I came back from the interview, I thought, yeah, why did he ask me sales? So while they were doing the interview, they said to me, "Ashish, what is one unique thing about you?" So I had not thought about it, but it came me in that moment. I said, "My name is Ashish. It comes in our national anthem. I want to be part of India growth story." Okay. And that is where he would have clicked that this guy can portray himself well, and that's where the sales injection came into the blood. Okay. तो उसके बाद क्या होता है हमारे कॉलेज में, वॉलचंद में, as you know, there is 1+1, which means they allow more than one company for interview for one person. Correct. तो उसके बाद HCL Infosystems आई, और HCL आई थी, you may remember, only for sales role. Sales role, right. तो काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई किया. मैं सेल्स में कॉन्फिडेंस आ गया था कि सेल्स तो कर सकता हूँ. तो 4 people were shortlisted. Okay. और उसमें से 2 लोग सिलेक्ट हुए थे. एक स्नेहल हुई थी, एक मैं हुआ था. So we were 2 people selected for sales role by HCL Infosystems. And HCL is a great company for anybody to start his sales profession. I think I have learned a lot in the first 2 years I spent there. Okay. So that's my story, how I began. And after that I joined companies. Rather than I did an MBA also. Because I thought, I worked for HCL. Then I joined LG for an year. So about 3 years I was doing sales role, but a mechanical engineer. I thought it's a mismatch. Let me do MBA. And my dad, always a forward-looking guy. He said,
छोड़ दे जॉब, ही वाज इन जॉब एट दैट टाइम, एमबीए कर ले। तो 2 साल का एमबीए किया मैंने, rather 1.5 साल का किया, बिकॉज मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया था 1.5 साल के तो बाद आई वाज ट्यूलिप कैंपस प्लेस विद ट्यूलिप टेलीकॉम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा अच्छा तो फिर मैंने ट्यूलिप ज्वाइन करी, अगेन सेल्स में ही आया वहाँ पे। अच्छा तो यार बड़ी कहानियाँ हैं, मतलब लाइफ की भी बात करेंगे तो और बताऊंगा, मज़ा आने वाला है। जैसे उस टाइम पे हम थे तो हम टेक्निकल जॉब के लिए मैंने अपीयर किया था, तो ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स थी उस टाइम पे, तो वहाँ पे मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था। तो सेल्स मेरे लिए तो ऐसे था कि यार धक्के खाओ, सच बोलो तो, इसलिए आई नेवर थॉट ऑफ गेटिंग इनटू सेल्स एक्चुअली। सो आफ्टर एमबीए, जब अपने एमबीए किया उसके बाद फिर से सेल्स में आ गया। सो यू स्टार्टेड लाइकिंग सेल्स फ्रॉम द डे वन, और हाउ वाज योर जर्नी सेल्स में? डिफिकल्टी क्या फेस नहीं हुई अब? दैट्स अ गुड क्वेश्चन यार। एक्चुअली वो कहता है ना यार, सेल्स का ना खून मुंह लग जाता है, तो इट्स लाइक दैट। 3 साल सेल्स करी तो सेल्स इज अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर ऑल्सो। इट्स डिमांडिंग फॉर श्योर, बिकॉज यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी फॉर रिजेक्शंस, फेलियर्स तो बहुत हैं। एवरी मंथ यू आर एट जीरो। आज मेरे को 20 साल हो गए काम करते हुए। You know, you may grow up the ladder, but you have to keep your ego very low. You have to be humble, you know, because customer is the king at the end of the day. Correct. So what I learned in this whole journey is पैसा बहुत बना सकता है सेल्स में आदमी। बट जब मैंने HCL में मेरी जॉब लगी तो दूसरे साल में मेरी सैलरी 2004 या 5 में 18,000 थी। ओके मेरे को इंसेंटिव गेस कर कितना मिला होगा, तो मेरे को 92,000 का इंसेंटिव मिला था। ओके 92,000, ओके 18,000 रुपये की सैलरी, 3 92,000 months की एक salary। साथ हाँ एक साथ आए थे। करेक्ट तो यू नो इट वाज लाइक मैं ATM 3 बार गया चेक करने के लिए कि मेरे सच पैसे में है ना उसमें, और मैंने पहली LIC पॉलिसी भी उसी पैसे से खरीदी थी। तो वहाँ पे ना समझ आ गया सेल्स करना है। बिकॉज नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैंने MBA के बाद क्यों सेल्स ज्वाइन किया? मैंने स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में भी करी थी और सेल्स में भी करी थी। okay। एंड आई डिड इवैल्यूएट मार्केटिंग एज अ करियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत 4Ps और ये सब Right। MBA में ना बहुत आ जाता है। बट जब कैंपस स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे कंपनी स्टार्टेड कमिंग इन, तो ट्यूलिप टेलीकॉम आई थी और वहाँ पे अमित थे उस टाइम पे, आई एम नॉट रिमेंबर द कंप्लीट नेम, हु वाज द हेड ऑफ सेल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। द कंपनी हैड कम फॉर इंटरव्यू। तो उसने मुझे फ्रेशर्स के साथ ले लिया, बिकॉज आई कम फ्रॉम MBA। मैंने कहा यार मैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस है। कहता यार सेल्स रोल में आएगा तो मैं तेरे को कंसिडर करूंगा। मैंने कहा आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल गो इन सेल्स। एंड ही सेड आशीष वी विल पे यू बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस दैट यू हैव, नॉट जस्ट एज अ फ्रेशर और फ्रॉम द कैंपस। और वहाँ से फिर स्टार्ट हुई। फिर मैंने ट्यूलिप ज्वाइन किया। सो आई वर्क विद ट्यूलिप अबाउट 4.5 years। तो ट्यूलिप वाज अ ग्रेट कंपनी, स्मॉल कंपनी व्हेन आई जॉइंड, एंड दे ग्रू वेरी फास्ट। अनफॉर्चुनेटली द कंपनी क्लोज डाउन, कुड नॉट रन। बट उस टाइम पे एयरटेल टाटा को अच्छी टक्कर दे रही थी इन द MPLS इंटरनेट बिजनेस। तो वहाँ मैंने 4.5 साल काम किया। एंड मैन वी मेड लॉट ऑफ इंसेंटिव, वी मेड ग्रेट रिलेशंस। वो कस्टमर आज भी मेरे साथ कनेक्टेड है जो मैंने उस टाइम पे बनाए। ग्रेट। तो आई थिंक दैट्स हाउ द नो हाउ आई अगेन लैंडेड अप इन सेल्स। दैट्स गुड बिकॉज सी मेरे केस में क्या हो गया कि आई वाज हार्ड कोड इनटू टेक्निकल। पेटेंट्स में मैं काम कर रहा था, हार्ड कोड टेक्निकल एग्जीक्यूशन, उसमें एक्सपर्टीज़। जब मैंने 2008-9 में जॉब छोड़ने का सोचा, और मेरी टेक्निकल स्किल्स पे बैठ करके मैंने लीप ऑफ फेथ लेके मैंने कंपनी निकाला। तो पहला चैलेंज वहीं पे आ गया, काम बाद में आता है पहले आता है सेल्स। सो इट वाज forced learning for me actually, frankly speaking। so उसमें as you are been working continuously in sales, तो तुम्हारे टिप्स एंड सजेशंस कैसे है, क्या है इसमें? रिवॉर्डिंग तो है बिकॉज मेरे हिसाब से ना कोई भी कंपनी सेल्स के बगैर चलती ही नहीं है। टेक्निकल एक्सपर्टीज ले लो, और सेल्स, ऑपरेशंस और सेल्स, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। अगर किसी बंदे को कोई कंपनी निकालनी है, या कोई भी कंपनी का स्ट्रक्चर ले लो, सेल्स पहला आता है, फिर तुम्हारी ऑपरेशनल एक्सपर्टीज आती है, राइट? सो सेल्स हैज़ सो मच इम्पोर्टेंस, बट पीपल हेट इट अगेन। करेक्ट है, स्पेसिफिकली इंजीनियर्स, एंड दे लर्न इट एट द वेरी लेटर स्टेज कि भाई ये अभी ज़रूरी है। सो उसमें एडवांटेजेस क्या मिले तुमको इतने जल्दी सेल्स में ज्वाइन करने से, कि पहले 3 साल तो सेल्स में किया, फिर से आप सेल्स में आ गए विद दैट एक्सपीरियंस? यार मैं लकली ना मैंने 2 स्टार्टअप से काम किया। एक वीवो करके थी कंपनी विच वाज इनटू ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस। सो आई वर्कड देयर फॉर सम टाइम, एंड माय रीसेंट कंपनी रैपिड, सो आई हैव बीन पार्ट ऑफ द फाउंडिंग टीम ऑलमोस्ट फ्रॉम day 1। एंड आई हैव लर्नड अ लॉट इन दिस कंपनी, बिकॉज 8 साल जब आप कंपनी को 15 लोगों से 350 लोगों की कंपनी बनते हुए देखते हो, वी आर वन ऑफ द लाउड पार्टनर्स विद AWS टुडे, एंड वी हैव आल्सो
tied up with certain ISVs like Snowflake, Databricks, तो DA का भी काफ़ी काम करते हैं. एक CCOE टीम बनाई है जो फोकस करी है कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स के ऊपर. तो अब इसमें मैंने एक चीज़ सीखी कि स्पेशली फ्रॉम आवर फाउंडर, सो ही ऑलवेज सेज दैट एज अ फाउंडर यू हैव टू बी ए सेलर. सो अगर आप सोच रहे हो मैंने कंपनी बना दी तो अब मैं एक सेल्स हेड को हायर करूंगा और उससे सारा काम हो जाएगा, वो ऐसा हो नहीं सकता. आज दिन तक अमित इज इन्वॉल्व इन सेल्स इसमें, बट देन एज अ फाउंडर यू कांट टेक योर आइज ऑफ द सेल्स. आई टेल हिम यार सेल्स इज अ डिमांडिंग प्रोफेशन. तो एज अ फाउंडर माय व्यू इज दैट यू विल हैव टू बी अ सेलर फर्स्ट. And Amit himself says that he was a techie. So Amit has, headed engineering teams. So he has been a techie all through. First time is when he went into entrepreneur journey, and then he started doing sales. So he says, yeah, I have, it was like a dialysis. So I had to completely change my personality from a techie to a sales. So he's an awesome sales guy today. He would always say, यार अभी तो मैं सीख रहा हूँ, because that is how he's hard coded. So we all have been focusing on learning, because what we all are doing in Rapido today is we're trying to punch above our weights. तो एक छोटी सी शुरुआत से उसको और बड़ा करने के लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है. तो अमित वॉज रियली कम्प्लीटली फोकस फ्रॉम डे वन दैट वी विल टेक एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स. तो हमने एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स लिए जो हमें सेल्स सिखाते थे, हाउ कैन यू डू बेटर, हाउ कैन योर पिच इम्प्रूव. सो वी हैव अ लर्निंग कल्चर इन कंपनी. आज की डेट में भी आवर KRAs इन कंपनी हैव लर्निंग डेवलपमेंट. देयर इज अ पार्ट ऑफ बोनस अटैच्ड टू इट. इफ यू डोंट डू, यू लूज मनी. So learning is as important. I think so. In nutshell, if I have to say, as a founder, you should build a team. You can't be doing everything. A lot of founders do this mistake कि मैं तो सब खुद कर लूँगा. वो possible नहीं है. तो आपको टीम तो बनानी पड़ेगी, but आपको you have to keep your eyes on the sales as a founder. So that is the bottom line story. So as a entrepreneur or a founder, it's always challenging. जैसे अमित के बारे में तुमने बोला कि he's still into sales and he still observes what is happening in the sales. Getting a right candidate on board is also challenging as if now in India. वो कैसे challenge आप solve करते हो? यार ये ना बड़ा touchy topic छू दिया तुमने, because hiring a right candidate is definitely most challenging, because you have all type of sellers in the market. Typically, I would have interviewed more than 500 people so far. Okay. And today, there's a team of about 30 people are focused on sales with me across north, south, and west. But when you are hiring, I think there are three types of sellers in the market. One type of sellers are who choose to be in sales. You're talking about personality. Three types of personalities that I see in sales. One is those who decide to go in sales. मतलब मैंने यार पढ़ाई सेल्स की करनी है और जाना ही सेल्स में है. Second category or second personality is who do some techie roles, maybe solution architect, pre-sales, and then they land up in sales. So that is second category of people. And then there is third category. Third category is people who don't get any other job and they find sales as easy entry because it's a low entry barrier. There is no technical, you should have qualification. Even if you have a normal graduation, you can excel in sales. Correct. So third category is those people who don't get any other job, then they settle in sales. The problem which I see is 99% sellers are in the third category. 99%. Because if I would have interviewed so many people, my favorite question is, when was the last time you did something for self-learning? Hardly 1% people will say we have done something specifically. कंपनी ने बोल दिया कर दिया. मैं भी जब रैपिडो से पहले बाकी कंपनीज में था, कंपनी कुछ बोलती थी ट्रेनिंग कर लो, वो करते थे. ये तो यहाँ आगे सीखा कि यार नई सेल्स भी सीखी जा सकती है, क्या क्या किया जा सकता है. तो लॉट ऑफ थिंग्स वी लर्न एंड आई थिंक training is as important sales as in tech, but people ignore it. तो वो 99% लोग ना वहाँ गलती कर जाते हैं. तो वो ग्रो तो करते हैं बट सुपरस्टार नहीं बन पाते. सेल्स तो कर रहे हैं वो भी, लेकिन यार sales is a very rewarding career. If you look at top companies, lot of times the CEOs will be moving from the sales roles, so who are heads of sales will move into country head or into a CEO role. So definitely it's a rewarding, but वो ना unfortunately ज़्यादातर और fortunately वो ज़्यादातर उस 1% से होते हैं. वो 99% से ना कम लोग वहाँ ग्रो कर पाते हैं उस लेवल तक. तो इसलिए important है वो जो 99% में है, they should understand where is the gap. प्रॉब्लम क्या है, लोगों को ना गैप ही पता नहीं है. वो लोग सोच रहे हैं हम चैंपियन हैं, तो वो गैप्स पता नहीं. अगर वो गैप्स कवर कर ले, उसकी ट्रेनिंग कैसे ढूंढे गैप्स? फॉर एग्जांपल
अब एक तो गैप एक सीधा समझ में आता है कि वो सेल्स नहीं हो रही, सिंपल पहला गैप है कि वो सेल्स नहीं हो रही है, बिक नहीं रहा। दूसरा कैसे और कौन से तरीके के आप समझ पाओ कि कोई ठीक से नहीं हो रहा है चीज़ें? यार सेल्स ना, मैं आपको बताता हूँ, सेल्स दो तरह की है। एक हाँ, आप हाँ। एक्सप्रेस और आप उसको बोल दो मिड मार्केट सेल्स, और हाँ, दूसरी एंटरप्राइज सेल्स है। हाँ, हाँ, छोटे अकाउंट में बेचना और बड़े अकाउंट में बेचना, तो हाँ। दोनों ना डिफरेंट बॉल गेम्स है। हाँ, 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 बट आपको मेजर अलग से करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर एक, लेट्स से यू हायर समबडी, हाँ, हाँ। अगर तू दूसरे महीने में एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बिजनेस लाएगा, दैट इज नॉट ईजी. Easy, easy. So you have to think there is a period, there is a Hmm. curve which will take some time, but then that curve has to be timed. It can't be unending, right? हाँ, 3 महीने हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, depending on the role that people are doing. So enterprise sales is a different ball game. Express is a different ball game, or mid market. So depending on which role you've hired for, you will have to put your parameters accordingly. For example, if you are focusing on enterprise, then possibly you need to have more gestation period. मतलब hire to dollar हो सकता है 3 से 6 महीने लग जाए. Okay, Those guys have to be more technically savvy. मतलब there are certain certifications. For example, if you are selling AWS, there is something called as cloud practitioner, solution architect. अगर आपको एंटरप्राइज में भेजना है तो आपको ये सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए एज अ सेलर. वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर. मोस्टली विल बी टॉकिंग टू द CIO -1, engineering heads. They will be able to relate to you better. So that is why you should measure your sellers not just on closure, also on the funnel. Because if a guy is getting enough meetings in good accounts, if he is getting enough contacts, if you are, let's say you have commanding center, knock, where you have to, your customer should be invited for visits. For example, you are doing podcasts again, right? If your customers are coming for these activities, or prospects are coming, that means he's putting his effort. Correct. Closures should not be the only measurement. It should be the number of meetings they are doing, how often they are involving your solution architects in the conversations, how many proposals are going out. So I think that's a fair measurement. And then comes, but sales तो है cutthroat रोल यार. यहाँ पे कहानी नहीं चलती है, करेक्ट. नंबर चलता है. नंबर चलता तुम 3 महीने कहानी सुना लोगे, 4 महीने सुना लोगे, 6 महीने सुना लोगे, उसके आगे नहीं सुना पाओगे. है. राइट. तो दैट इज द रियलिटी. ओके, ग्रेट. सो हायरिंग अभी जैसे आपने बोला कि 1% आर द पीपल हु रियली चूज टू बिकम अ सेल्स पर्सन एंड 99% फॉल इनटू द थर्ड कैटेगरी. अब इट्स वेरी rarely possible that you get a person who is into that 1% category. You always land up choosing a person by choice or without choice, because sometimes we have a pressure. So what should be done to change them, mold them, to make them aggressive in sales? That's a good question. And obviously you can't get always 1%, and you can't get always 1% people. Right. You may get there, but then you will have to choose out of those 99. But there are guys who self-realize. For example, a guy who has been investing in his learning. पता चल जाता है, छोटे-छोटे questions हैं, उसकी एस्पिरेशंस पूछो अगले 5 साल की, 10 साल की क्या है, उससे भी आइडिया लग जाता है. अच्छा, ओके. मेरा फेवरेट क्वेश्चन इंटरव्यू में है, टेल मी समथिंग विच इज रियली इंटरेस्टिंग अबाउट यू, जो सुन के ना गूज बम्स आ जाए. तो जो बंदा वो स्टोरी सुना देता है ना, उसने कुछ तो करा लाइफ में. अच्छा. तो छोटे छोटे हैक्स है जिससे पता चल जाता है कस्टमर कनेक्ट्स कितने हैं, मार्केट में कितना कनेक्टेड है. बिकॉज जो सेल्स ना ऑफिस में बैठ के नहीं होती यार. मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस पर. जो बोलता है मैं सेल्स ऑफिस में बैठ के कर लूँगा, मेरे लिए तो मतलब वो इम्पॉसिबल है. बिकॉज अगर आपको लार्ज एंटरप्राइज में बेचना है तो आपको कस्टमर में जाना पड़ेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. सी एंटरप्राइज सेल्स में ना आप ये नहीं कर सकते हो आप गए और रिक्वायरमेंट लेके आ गए. करेक्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट सॉल्यूशंस फॉर दोस प्रॉब्लम्स. फॉर दैट यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द IT team, infra team. You have to spend time with the engineering team. Maybe meet the business team. So you have to spend time. You have to be there, right? Right. तो आपको कस्टमर के साथ बैठना पड़ेगा. और एक कहावत है यार बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है वन हु इज क्लोजर टू द कस्टमर विल विन द डील. वही होता है यार. मतलब लोग मेरे को सुनाते हैं सर यहाँ पहुँच गए. मैं पूछता हूँ आखिरी बार कब मिला था कस्टमर से. अगर बोलता ना 1 महीने से मेरा डील हटा दे फनल से. यार कस्टमर ही नहीं मिल रहा तेरे से, कैसे कोई और मिल रहा होगा उसके साथ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी वेरी क्लोजर टू द कस्टमर एंड यू नीड टू हैव अ कंसल्टेटिव अप्रोच. तो कंसल्टेटिव अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट है. इफ यू हैव टू गो इनटू लार्ज एंगेजमेंट्स. बाकी आपको अपॉर्चुनिटी बेस्ड काम करना है तो वो आप छोटे अकाउंट्स में कर सकते हो, बड़े अकाउंट्स में नहीं कर सकते. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई आपने. तो फ्रेशर्स के लिए क्या सजेशंस हैं आपके, इफ दे शुड come into sales or why should they come to sales?
फ्रेशर्स के लिए इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये ना एक मिथ है कि यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट टू बी इन सेल्स। मैंने हाँ, इतने बढ़िया बढ़िया इंट्रोवर्ट लोग देखे हैं जो हाँ। कम बात करते नहीं, मतलब की बात करते हैं और ऑसम सेलर्स हैं। अच्छा, कम बात करने वाले भी ऑसम बिकॉज सेलर्स है, जो इंट्रोवर्ट आदमी है ना वो लिसनर बहुत अच्छा होता है। लिसनर होता है, जो राइट, एक्सट्रोवर्ट होता है ना सुनाता है वो। वो सुनता कम है, बिकॉज उसकी ना जल्दी होती है बोलने की। हाँ, तो ये भी बहुत बड़ा एक मिथ है। तो अब आप अपना पर्सनालिटी देखो, आप देखो आपको कहाँ पे इंटरेस्ट है। अब अगर आपका इंटरेस्ट ही डेवलपमेंट में है, टेक की रोल्स में है, आप वही कर रहे हो, तो देन यू फोकस देयर। बट अगर आपका इंटरेस्ट है कुछ डिफरेंट करने में, हाँ, अगर आप चाहते हो मैं कल एक कंपनी बिल्ड करूं, हाँ, तो आपको ना सेल्स आनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप वेरिएबल सैलरीज, इंसेंटिव्स बहुत अच्छे होते हैं सेल्स में, मैंने बताया कि यार मतलब आज तक मेरे को वो अमाउंट याद है। एंड सीरियसली मैंने ना कोई भी लक्जरी बोल दो यार, फॉर एग्जांपल ये सोफ़ा है, हाँ, इसको आप 2 लाख का भी ले सकते हो, आप 10 लाख का भी ले सकते हो। तो मैंने जब भी चीज़ें अपग्रेड करी घर में या घर अपग्रेड किया, तो मेरा फर्स्ट होता था कि यार इसमें से वेरिएबल से कितना जा सकता है। फिक्स सैलरी शुड गो फॉर माई बेसिक्स एंड ऑल एवरीथिंग एल्स शुड गो फ्रॉम वेरिएबल। तो सेल्स में ना वो, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, बिकॉज आपके हाथ में है। काफ़ी कंपनीज में तो अपर कैप भी नहीं होता वेरिएबल का, आप 200% कमा सकते हो, 300% कमा सकते हो, बिकॉज आप धंधा ला रहे हो ना यार। अगर आप बिजनेस ला रहे हो तो ले लो, किस फाउंडर को प्रॉब्लम है आपको शेयर करने करेक्ट में? करेक्ट, ट्रू तो ट्रू इफ यू आर रियली एम्बिशियस, बट फॉर दैट यू हैव टू बी रेडी फॉर द ग्राइंड। सेल्स इज अ वेरी कट थ्रोट प्रोफेशन बॉस, कहानी नहीं चलती है, मैंने पहले ही बोल दिया था शायद। तो यार आपको नंबर ड्रिवन होना पड़ेगा, आपको हर महीने धंधा करना है, आपको हर साल धंधा करना है। आप अगर इस साल टॉप परफॉर्मर, तो अगले साल फिर 0 पे शुरू करोगे। काउंटर रीसेट हो जाता है, काउंटर रीसेट हो हर जाता है, महीना रीसेट हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो यार मतलब थोड़ी खुरक तो होनी चाहिए लाइफ में अगर सेल्स में आना है। सीधी सादी जॉब करनी है, मजे से बैठना Stable life है, चाहिए तो स्टेबल फिर- लाइफ चाहिए। तो सेल्स का तो बंदा यार, नहीं हो। तो थोड़ा मतलब स्टेबल लाइफ सेल्स में भी ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी अच्छी है, फनल बिल्ड अच्छी है, तो स्टेबल लाइफ है ना यार। करेक्ट, जो सेलर के पास अच्छा क्लोजर है, अच्छी फनल है, वो सेट है लाइफ में। जिसके पास नहीं है वो डेस्परेट हो जाता है फिर। करेक्ट करेक्ट। तो आई थिंक फॉर फ्रेशर्स स्पेसिफिकली, इफ यू हैव दैट पर्सनैलिटी, यू वांट टू रियली create your presence in a company, because sales is one of the most important function of a company. Sellers are loved by companies because they are getting you revenue. Correct. So I think that is an advice, but you should start, if you are in tech profession, then start learning about sales. Or if you are in MBA or doing a business study, then read more about sales, read about personalities. सेल्स इज अ साइंस, आई ऑलरेडी सेड दैट यार। बड़ा सिंपल मंत्र है सेल्स का, जो आपको सीखना पड़ता है। अगर आप वो सीख सकते हो तो आप सेल्स में आ सकते हो। फिर कंपनीज में भी अच्छा ग्रूमिंग हो जाती है। वी आल्सो हायर फ्रेशर्स, एंड देन वी वालचंद जाते हो कभी? फ्रेशर्स फ्रेशर्स हमारे टाइम में, अरे भैया वालचंद में तो 50% या 20% ये होती थी कैंपस सिलेक्शंस। 20% के ऊपर नहीं जाती थी उस टाइम पे। 100% तो हमारा कभी नहीं हुआ। अभी 100% के ऊपर चल रहा है और सैलरी भी बहुत मिल रही है अभी। मैंने सुना अभी कुछ 1-2 करोड़ का पैकेज मिला है। आई मीन वन ऑफ द ग्रुप सर, 1-2 करोड़ के आसपास का पैकेज मिला है। वन ऑफ द गाइज, आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक कॉलेज यार। मतलब प्री इंडिपेंडेंस 100 एकड़ का कैंपस था। शुरू हुआ था 1948 का स्टार्ट है उसका हमारे कॉलेज का, एंड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस बोल सकते हो। एंड थर्ड ओल्डेस्ट कॉलेज इन इंडिया, इंजीनियरिंग कॉलेज आई कैन से, ऐसे था वो। तो या मेरे ख्याल से हम जब ये कॉलेज सिलेक्ट हो रहे थे ना, मेरे पास चॉइस था GCOP सिविल और मैकेनिकल वालचंद मिल रहा था। तो मैकेनिकल वालचंद वाज वेरी नोन, यार यही करेंगे। और शायद उसके बाद या कहीं तो ना एक मूवी आई थी RSTDM, उसमें ना वो कहता है कि मैकेनिकल के बंदों पे ही था वो, लाइफ में फायर होती है। पता नहीं यार उससे पहले देखी थी, बाद में याद नहीं आ रहा, लेकिन कॉलेज के डेज में ही था वो। कॉलेज के डेज में वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फायर होती है, वो फायर कहीं से आ गया था दिमाग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चले गए। तो यार वालचंद कॉलेज तो नहीं गए आज तक। आई वुड लव टू गो देयर, बट वी गो टू जनरली MBA colleges, we go to some BE colleges, and then we have our own process, and HR will do that, and then we'll shortlist people. And trust me guys, I am surprised by guys who have joined as freshers. They have groomed so well. They are top performers today. कंपनी में है आज, awesome काम कर रहे हैं यार। बट 10 में से 3 लोग मान लो वहाँ पहुँच पाते हैं, बाकी 7 ना नहीं कर पाते।
बिकॉज टफ है, ग्राइंड है, रिजेक्शन है, तो दैट इज हाउ इट इज. बट आई थिंक या इट्स अ गुड प्रोफेशन टू स्टार्ट विद. HCL में मैंने बताया यार, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. HCL इन्फो सिस्टम्स में सेल्स को, फ्रेशर्स को मुझे भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी ना, तब मैं आज बातें कर रहा हूँ. करेक्ट. तो आई लर्न अपॉर्चुनिटी मिलना भी बहुत है बहुत एक्चुअली. बड़ी बात. राइट एज, राइट अपॉर्चुनिटी मिल के ही आप आज यहाँ तक पहुँच सकते हो. नहीं तो बैक साइड अगर पीछे जाओगे और वो नहीं होता तो आज ये कुछ और ही होते, राइट. अगर वो इंजेक्शन नहीं लगा होता तो शायद मैं आज कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मे बी यू नो आई वुड हैव बीन. मैंने देखा था पहले से ही कि जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी थी कि इट वाज दिखता था कि कभी तो ये सेल्स में ही बंदा जाएगा, क्योंकि यू हैड दैट करिश्मा फ्रॉम दैट टाइम. आई कैन सी. तुझे याद है हमने प्रोजेक्ट साथ में किया था. और जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कुछ ऑटोमेटेड टेबलेट मेकिंग पूरा मैंने किया था. नाम सबका डाला था यार. नहीं ऐसा नहीं है. वो MIDC में मैं भी तेरे साथ गया था यार, 2-3 चक्कर लगाने. तीन रात मैं सोया नहीं था, पूरा प्रोजेक्ट बना रहा था. तो उसमें वो कैम बनना था लेथ मशीन के ऊपर. और कौन था? प्रेमानंद था और राकेश रोशन. अच्छा, राकेश भी था उसका. राकेश रोशन था उसका. तो यार वो दिन तो अलग ही दिन. जैसे मैं जाते रहता हूँ, मुझे पेटेंट के लिए अवेयरनेस वगैरह होता है या फिर उनके पेरेंट्स होते हैं, तो मैं जाते रहता हूँ कॉलेज में. तो हमारे टाइम का जो अब उसको फ्रेम कैसे करें मुझे पता नहीं था. जो हमको लिबर्टी मिली है ना उस टाइम पे वो अभी नहीं है लोगों को, ऐसे बोल सकते हैं. हमने जैसे बैक बेंचर भी रहे हैं, कॉलेज बंक भी किया है, कभी कभी हम सिर्फ प्रैक्टिकल में भी गए हैं, और पूरा हम एग्ज़ाम क्लियर करते करते आ गए, राइट. अभी एवरीवेयर देयर इज़ अ कैमरा, एवरीवेयर देयर इज़ अ कैमरा. ओह माय गॉड. अगर लेक्चर चल रहा है ना, मैं 8-10 साल पहले गया था, मुझे याद है. मैं तो गया था एक बार, और कुछ फ्रेंड्स के साथ गया था. एक समीर मेरा फ्रेंड, आई एम स्टिल इन टच विद हिम, मतलब ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो वो, मैं और विशाल, हम लोग कॉलेज गए थे साथ में. वो मतलब वी वांटेड टू स्टे इन द हॉस्टल, बट अब वहाँ नहीं रह सकते. तो मतलब मैं 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो बहुत चेंज हो गया होगा. तो हमने ना होटल लिया कॉलेज के बाजू में, तो वी स्टेड देयर फॉर अ डे, वी लिव्ड दैट लाइफ, वी वेंट टू मेस, मेट ऑल दोस गाइज, एंड इट वाज सो रिफ्रेशिंग. एटमॉस्फेयर भी अच्छा था वहाँ पे. सुबह सुबह हमको ये दिख जाता था वहाँ पे, मोर दिखता है वहाँ पे. तो सुनीता, तुमने बहुत क्वेश्चन पूछने मेरे से. ये बताओ, यू आर इनटू पेटेंटिंग बिजनेस एंड यू आर आल्सो विजिटिंग फैकल्टी टू कॉलेजेस. मतलब अब बड़ा पढ़ाकू टाइप हो गया है. तो टेल समथिंग अबाउट योर कंपनी, व्हाट यू आर डूइंग, हाउ आर यू एंजॉयिंग इट. सी, मैंने ये करियर ऑलमोस्ट अभी 22 साल हो गए इस करियर में आए हुए. जैसे यू जॉइंड सेल्स आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग. बाय चांस आई गॉट इनटू पेटेंटिंग एक्चुअली. एक कंपनी थी वहाँ पे, IPR करके आया था. तो IPR मुझे पता ही नहीं था क्या है पापा IPR, और इंजीनियर्स क्यों ले रहे हैं वहाँ पे. तो मेरे एक लॉयर फ्रेंड को पूछा, ये IPR क्या होता है भाई इसमें दे दूँ इंटरव्यू या नहीं दे दूँ. उसने बोला कि अच्छा है, बहुत सारा अच्छा है, इसमें फ्यूचर अच्छा होगा. तो वहाँ से मेरा करियर शुरू हो गया. फिर उसके बाद अभी 20 साल हो गए मुझे इसमें. तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि पेटेंट फाइलिंग है, या ट्रेडमार्क है, या फिर कॉपीराइट्स और डिज़ाइन, ये बेसिक काम करते हैं. उसके आगे जाके हम स्टार्टअप्स या कंपनीज़ को वी हेल्प देम इन बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज़ एक्चुअली अराउंड देयर इनोवेशन, सो दैट दे कैन कैपिटलाइज ओवर देयर मार्केट्स. तो अभी सेल्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको बेचना पड़ता है हर रोज़, करेक्ट है. वो प्रॉब्लम हम 100% सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका प्रोडक्ट है, हाँ, और उसका पेटेंट अगर सही से किया है आपने पूरा सही से, तो आपका 100% मार्केट शेयर, समझे आप. तो आपको सिर्फ नॉक करना है, डोर ओपन ही हो जाएंगे. ये अच्छी स्ट्रेटजी है. हम तो सर्विसेज कंपनी है, हम सर्विसेज में पेटेंट होता है. हमारा भी नहीं होता पेटेंट, सर्विस इंडस्ट्री में नहीं होता है. यू नेवर नो, हम कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करें. IT प्रोडक्ट्स पे पेटेंट होता है सुन. IT पे होता है, थोड़ा सा ट्विक है उसमें, थोड़े सेक्शंस है उसमें, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं. मेयर सॉफ्टवेयर पे नहीं होता, बट IT में भी होता है पेटेंट्स. तो मे बी कुछ प्रोडक्ट हम बनाए फ्यूचर में, तो we will contact you for any patenting. I think that's really good to patents can give you. और इनका टाइम कितना होता है पेटेंट्स का? सपोज अगर आपने पेटेंट किया एक प्रोडक्ट, वो कितने साल तक वो पेटेंट रहता है? वो 20 साल तक रहता है पेटेंट. बट अभी क्या है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ही कम हो गया, 5 साल 6 साल. तो आपको अगर उसके पेटेंट का लिवरेज लेना है, तो कैसे होता है कि कोई भी इंडस्ट्री में देखो तो इनोवेटिव प्रोडक्ट कम एट अ वेरी हायर कॉस्ट इनिशियली. तो देन जो ग्रे मार्केट होता है, वो जो जब पुराना होता है तो उसको कॉपी करना शुरू कर देता है. तो उनको रोक के आप over the 20 years you can earn and you can have a market advantage initially. तो ऐसे आप कर सकते हो, ऐसा है. और मतलब I don't know, but
इसमें कितना कॉस्ट वॉस्ट आता है पेटेंटिंग करने में, थोड़ा आइडिया दे सकता है, मतलब जस्ट फॉर इंडिया में ना, इंडिया में तो बहुत ही सस्ता है, एक पेटेंट के लिए 1.5 लाख तक लगता है, 1.5 पौने 2 लाख। बट इंडिया के जैसे ही बाहर जाओ ना तो बहुत महंगा है वहाँ पे, 7-8 लाख पकड़ लो, यूएस तो में, यू आर यूरोप फोकसिंग में। देन, तब तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन ग्लोबल कस्टमर आल्सो यार, वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है तो वहाँ पेटेंट कराओ साथ में। बट इंडिया में कराओगे तो आई थिंक इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इंडियन बाहर इकोनॉमी, कराओगे तो हाँ, बाहर की राइट इकोनॉमी राइट को राइट मिलेगी। राइट राइट। बट हाउ डू यू फाइंड, डू यू डू global customers also? Yeah, we have global How do you customers. find Indian customers and global customers? And I know both are giving you business, so you have to be very balanced when answering this. नहीं, देखो, see, 95% of the customers that we have are also from India, and 5 to 10% who are a big ticket client. If you compare with cost wise, the big ticket clients are from foreign actually, but ethic wise, 98% clients are very good in paying. They understand the problems. There are 2% problem है, recovery में problem आता है. There are notorious clients, आपको भी आता होगा I think so. हमारा अलग ही है. तो so little tricky market है. Indian market is little tricky. They don't understand value. उनको दिखाना पड़ता है value. But if you consider US and Europe market, they're all learned people. They know why they are filing patents, what value they expect from it. So that's a big difference. They know what they're doing. India में they are not, they are just doing it for the sake of compliance. ऐसा है. Oh, that's also there, huh? हाँ. Because if you have to do it for compliance, that's something else. But if you're doing it as a business value, so typically, do you meet whom do you meet in your customer persona? Do you meet the founders? Do you meet the who are the personas that you have to target? Generally, if it is a small size company, mid size company, the founders are the with whom we approach, directors, founders. And if it is a big MNC, then we have our CTOs, R&D heads, legal heads. These are the people who we meet actually. This is how. Okay, that's the persona that you have to track. तो अभी कितनी बड़ी सेल्स टीम बना ली है सुने? I am still in sales. You have to be. मैंने पहले ही बोल दिया, सेल्स से नजर नहीं हटा सकते. Sales, I am still there. So in spite think of as a having a team, we are still in sales and we are growing. ऐसा है. It's interesting यार, Pune is an amazing place to do startups यार. I love that place. Pune was actually, now the roads are pathetic वहाँ पे. अभी roads का problem हो गया. Hopefully 2-3 साल में वो problem solve हो जाएगा. Everywhere there is a road construction blockage, road construction metro block. But better हो जाएगा. But मैं गुड़गांव में देखा तो roads are done actually. 10 साल बस तो पहले गुड़गांव में बारिशों में नहीं आए हो. यहाँ पानी भर जाता है. इतना पानी भर जाता है कि आप मेट्रो स्टेशन से बाहर चल नहीं सकते हो. काफी पानी हो जाता है. मैं नोएडा रहता हूँ, नोएडा का इंफ्रा ज़्यादा अच्छा है. वहाँ पे बड़े रोड्स है. आई थिंक इंफ्रा वाइज नोएडा मुझे बेटर लगता है, बट सारी कंपनीज यहाँ पे है बिकॉज नियर टू द एयरपोर्ट. बट प्रॉब्लम्स हैं यार गुड़गांव में बॉस. अभी मतलब गाड़ियाँ पानी में डूब गई थी कुछ टाइम पहले जो रहते हैं यहाँ पे. अपने चैलेंजेस हैं यार, हर जगह के अपने चैलेंजेस हैं. बट मुझे लगता है यू शुड ऑलवेज थिंक फ्रॉम ए पॉजिटिव एंगल यार. हमारी कर्म भूमि है, तो दिस इज द प्लेस. किसी के ऊपर तो काम कर रहे हैं. करेक्ट है. हाँ, जहाँ से हम कमा रहे हैं, तो मतलब वी शुड ट्राई टू. हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वी कांट सॉल्व प्रॉब्लम्स, बट प्रॉब्लम्स तो है, अपने चैलेंजेस है यार. वो इससे मुझे याद आ रहा है कि इससे मेरे को एक ख्याल आ रहा है, सेल्स के लिए यार, सेल्स ना फील्ड में होती है. तो ऑफिस में बैठ के ज्ञान देना आसान है. जब आप फील्ड में जाते हो ना, गर्मी हो, दिल्ली में 45-50 डिग्री टेम्परेचर जाता है. उस गर्मी में भी सेल्स वाले को बाहर जाना है. बारिश हो रही है उसमें भी बाहर जाना है. जो मर्जी हो रहा है. तो सेल्स टफ है, लेकिन ल्यूक्रेटिव भी है. ओबियसली ल्यूक्रेटिव तो होगा यार. तो मतलब, और अगर आप हायरार्की में ऊपर जा रहे हो ना, तो यू शुड मेक श्योर दैट यू आर मीटिंग, यू आर स्पेंडिंग अ डे विद योर एएम अकाउंट मैनेजर, जो आपसे 2 लेवल नीचे है ना. आप एक दिन, पूरा दिन उसके साथ जाओ, सुबह से शाम तक. हाँ, महीने में एक दिन जाओ उसके साथ. दैट विल कीप यू ग्राउंडेड. नहीं तो ना, बिकॉज आप लैडर अप हो जाते हो फिर. तो एक दिन जाओ यार, अच्छा रहता है. मैं तो खुद फील्ड में रहता हूँ, मतलब मैं तो मजा आता है फील्ड. अच्छा, ग्रेट. तो कस्टमर से मिलना इज माय पैशन. आई लव इट. आई थिंक दैट इज द प्लेस विच गिव्स लॉट ऑफ लर्निंग. तो मैं कस्टमर से बहुत कुछ सीखते हो यार जब आप मिलते हो, उनके एक्सपीरियंसेस. तो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है सेल्स की. सो एनी फाइनल टिप्स फ्रॉम योर साइड? फाइनल टिप्स फॉर एवरीवन और एनी स्पेसिफिक कैटेगरी यू वांट टू गिव? यार सेल्स पे बहुत बोलते हैं, अपना कस्टमर के लिए कुछ बोलते हैं. मुझे लगता है कस्टमर्स
are the reason for which your business exists. Correct. तो मुझे आबिदा बाबा बुल्ले शाह ने लिखा है, आबिदा हाँ। परवीन ने बोला है या गाया है, हाँ। तो कभी कभी सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है. हाँ। तो ना बड़ा एक अच्छा शेर है, मैं बोलता हूँ वो, हाँ। जब तक बिका न था, हाँ। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, हाँ। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया. Really wonderful. Really So wonderful. thanks to the customers who have brought us here, Right. who are a backbone to any business. Correct. Thank you very much for giving time. Actually, last moment पे तुमको बताया और you were ready to speak on sales, and which is the biggest pain problem for many companies actually. And I hope everyone has learned a lot of things and they can use these tips to make sure that you are thriving in your company or in your business. So thank you very much for giving me your time. Thanks to the pleasure, man. Walchand rocks. Walchand rocks. Thank you. Thank you. So keep learning, keep investing, and keep earning tremendously. All the best. Thank you, and don't forget to hit the like button if you like this video. Thank you, and share it to the people who need it the most. Thank you.